Good morning, all of you. How are you? Welcome in APSC Academy online classes, students. Students, previous class we learned EVS 2 about the Shivaji Maharaj kingdom and his life story. Student, in 5th standard we learned about the EVS 2, which book including in this syllabus. Okay, student, observe this picture. This is the first page, covering page of your book of EVS subject 2. Okay, environmental study part 2. Student, which is name of your book? How we come to be, हम कैसे आए, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुई, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं. यहाँ परिसर अभ्यास के अंतर्गत परिसर अभ्यास भाग 2 के अंतर्गत आता है. वी लर्न अबाउट हाउ वी केम टू बी. इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 स्टैंडर्ड 5. स्टूडेंट, ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स. व्हाट इज गिवन समथिंग? समथिंग इज डिफरेंट हियर. विच टाइप ऑफ एनिमल्स गिव हियर? As a like monkey. But students, it is the past of the human. It is the past of the human. Students, observe these pictures. How to develop human step by step, it is given here. It is given here. Then we look here. Student, now here, what is given here? Many animals and many human bodies draw in this picture. Okay, now then we look here. Palm of the human. How beautiful picture of the human's palm. Now this type given in your. Students, listen. Who published this book? Whenever you learn about any subject, that time you start learning from the first page, from the covering page, first page. Okay, students, who published this book? Maharashtra State Bureau of Test Production and Curriculum Research, Pune. MSBTPC ऐसा R. Okay, Maharashtra State Bureau of टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे एंड SCRT कहते हैं बच्चों इसको, SCRT के द्वारा चुना गया था. इधर देखिए, बहिरंग कहते हैं इसे, बहिरंग. क्या कह दिया आपके बुक में? दैट टाइप. ओके, नाउ स्टूडेंट लिसन. वी लुक द नेम ऑफ दिस बुक, हाउ टू बिकम. Okay, in this subject, first lesson in given about the human history, about the human history. So student will learn this chapter. And what is name of the chapter? What is history? What is history? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? किसका? तो ह्यूमन का. किसका इतिहास होता है? ह्यूमन का. तो इतिहास क्या है, यहाँ लेसन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों. कौन सा? इतिहास क्या है, यहाँ लेसन पढ़ने वाले. फर्स्टली वी रीड दिस नाउ. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लुक हियर, ऑब्जर्व व्हाट इज गिवन हियर. डेफिनेशन ऑफ गिवन हियर अबाउट हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? What is mean of the history? What is the definition of the history? Whenever I ask question to you, that time which type of question to you? What is definition of the history? What is history?
What is mean of the history? That type, 3 types of question make on this topic. Okay, only one line or one sentence given here. History means a science that tell us about event in the past. यानी आपके भूतकाल के घटनाओं के बारे में जो शास्त्र बताता है उसको कहते हैं हिस्ट्री. बच्चों, आपके भूतकाल के घटनाओं का जो शास्त्र है या वर्णन करने वाला शास्त्र है उसे कहते हैं हिस्ट्री. तो बच्चों, इसको आपको एक ही लाइन में लर्न करना है. अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट. हमें जो हमारे भूतकाल की घटनाक्रमों का वर्णन बताने वाला जो शास्त्र होता है वो होता है हिस्ट्री. इन 1.2 गिवन हियर द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. तो बच्चों, इस लेसन में हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री पढ़ने की शास्त्रीय पद्धति कौन सी है या प्रणाली कौन सी है, कौन सी शास्त्रीय प्रणाली कौन सी है, यह भी हम पढ़ने वाले बच्चों. शास्त्रीय पद्धत मराठीमध्ये म्हणतात. बच्चों, उसी तरह से 1.3 में हिस्ट्री एंड अस, इतिहास और हम कैसे आहे, इतिहास हमसे कैसे निगड़ित है, हमारे बारे में इतिहास क्या बताता है, हमारा इतिहास क्या है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, उसी तरह से 1.4 दिया हुआ है. 1.4 दिया है दी पास्ट एंड दी फ्यूचर. दी पास्ट एंड दी फ्यूचर, हमारा भूतकाल और हमारा आने वाला भविष्यकाल कैसा होगा, इसके बारे में बच्चों. ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस लेसन वी लुक हियर फर्स्ट पॉइंट अबाउट द हिस्ट्री. अबाउट द हिस्ट्री. Now look clearly here. Okay student, which topic we learn now? History. About the history, what is definition of the history? What is given here? History means a science that tells us about event in the past. This definition given here. What is given here? Last year in standard 4th we studied the life of छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज मिशन ऑफ इस्टेब्लिश स्वराज. तो बच्चों, पिछले साल हमने कक्षा 4 के EVS 2 में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और उनका जो ध्येय था और जिस तरह से उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी, इन सब के बारे में पढ़े थे. तो बच्चों, आगे देखते हैं. द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर बिफोर नाउ, और इन द अदर वर्ड द टाइम 400 ईयर अगो. बच्चों, हमने जो शिवाजी महाराज की हिस्ट्री देखे थे, 400 साल पहले की हिस्ट्री हमने देखे थे बच्चों. 400 साल पहले जो शिवाजी महाराज की हिस्ट्री थी, उनका जन्म हुआ था, इस बारे में पढ़े थे. और अभी देखिए ये चीज़ दी हुई 400 ईयर एगो, मतलब 400 साल पहले की 400 साल पहले की हिस्ट्री हमने छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ के बारे में कक्षा 4th में पढ़े थे. अभी बच्चों, हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें क्या पढ़ना है? तो बच्चों, हमें पढ़ना है फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइडेड टाइम इन डिफरेंट वेज. हमारे जो रचनाकार है उन्होंने टाइम को डिवाइड किया है, बांट दिया है. कैसे? बहुत अलग अलग तरह से टाइम को डिवाइड किया है. आप भी समझते हो बच्चों, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा. ऑफ्टन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम, और टुडे, यस्टरडे, टुमारो, और दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, इट इज से. बच्चों, आप लोग बोलते हो अभी चाहिए, बाद में दे देना, मुझे तो तूने दे दिया था, आज, कल, परसों, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स जब आप टाइम के बारे में बोलते हो तब आपके दिमाग में टाइम क्लिक हो जाता है, उसकी जो संकल्पना है वो आप समझ जाते हो बच्चों. उसी तरह से
जो रचनाकार है उन्होंने टाइम को विभिन्न प्रकारों से बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल वी लुक हियर, नाउ अभी, सम टाइम एगो कुछ दिन पहले, आफ्टर सम टाइम कुछ दिन बाद, और टुडे मतलब आज। नाउ अगर हम नाउ बोले तो हम समझ जाते हैं अभी इसी वक्त की, टुडे की बात है, आज की बात है। सम टाइम एगो बोले तो हम समझ जाते हैं बच्चों बीता हुआ कल है, एस्टरडे है, कल बीत चुका है, समय जो है वो अभी का नहीं है, बीता हुआ समय है। और फिर कहते हैं बच्चों आफ्टर सम टाइम, जब हम आफ्टर सम टाइम वेन एवर वी प्रोनाउंस दैट वर्ड्स दैट टाइप वी अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली टुमारो। ये एक आने वाले समय के बाद बोल रहे हैं, टुमारो की बात बोल रहे हैं, जो समय आने वाला है उसके बारे में बोल रहे हैं, कल की बात बोल रहे हैं, अभी आया नहीं है। इस तरह से हम लोग समझ जाते हैं बच्चों। उसी तरह दिस ईयर मतलब इस साल की, करंट की बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले की बात बोल रहे हैं। पास्ट ईयर तो बीता हुआ ईयर होता है। तो बच्चों इसी तरह से हम टाइम के बारे में जिस वर्ड्स को यूज करते हैं उस बारे में अपनी संकल्पनाएं क्रिएट करते हैं, अपने दिमाग में एक व्यू तैयार होता है कि वो समय कैसा होगा। तो बच्चों इसी तरह आगे देखते हैं, व्हेन वी यूज दिस words we are actually measuring time in your mind. Okay, whenever this type words we pronounce, that time we can understand automatically about this word, these words about the time, and automatically click in your mind. What is click now? Tense, call, time. Okay students, now we look here. Today, now, this year are terms that they indicate the present. You know about the tense. You learn in the grammar students. Tense, काल, मराठी काल टू द काळ, काळ समय, टेंस। आप लोग ग्रामर में पढ़े हो बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम जब नाउ, टुडे इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं तब हमारे दिमाग में ही क्लिक हो जाता है, इट इज़ द इंडिकेट टू द प्रेजेंट टेंस, इट इज़ द इंडिकेट टू द प्रेजेंट टेंस। देन व्हेनेवर वी प्रोनाउंस द वर्ड सम टाइम एगो, वी ऑटोमेटिकली क्लिक इन योर माइंड yesterday. Yesterday means past tense, yesterday means past tense, and last year means automatically click in your mind, yes, become the time, become the time, आने वाला समय है, आने वाला समय है। बच्चे जब हम ये समझते हैं कि ये तो समय आने वाला है, मीन्स वी क्लिक, इट इज़ द फ्यूचर टेंस, इट इज़ द फ्यूचर टेंस। So student are terms that indicate that the past, after some time, tomorrow, and the next year are the word that indicate the future. Okay students, and whenever we pronounce related the words about the time, that time we automatically understand which tense given there, which tense given there. Students, now in this lesson we will learn about the time that has already gone by in the past. What is learned in this lesson now? The time that has already gone by this the past means student, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वह किस में इंक्लूड होता है बच्चों? तो भूतकाल में इंक्लूड होता है। मतलब भूतकाल का डेफिनेशन क्या कर सकते हो? The time that has already gone by in the past, it is called to the past tense, students. And then the time that we are in now, the time that we are in now is the present, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है बच्चों उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अभी करंट में जो चल रहा है, अभी जो घटने वाली जो घटना है, इवेंट है, उन्हें हम कहाँ इंक्लूड कर देते हैं बच्चों? प्रेजेंट टेंस, वी इंक्लूड इन द प्रेजेंट टेंस। देन वी विल लर्न नाउ अबाउट द फ्यूचर टेंस। व्हाट इज द फ्यूचर टेंस? टुमारो, क्लिक नाउ, टुमारो, कल, आने वाला, समय आया है, बीता है? नो, आने वाला है। आया है क्या, बीता है कि नहीं? आने वाला है बच्चों, आया नहीं है, आने वाला है। ऐसे जो टेंस होते हैं, ऐसा जो काल होता है, ऐसा जो टाइम होता है स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड टू द फ्यूचर टेंस, इट इज कॉल्ड टू द फ्यूचर टेंस। इन हिंदी भविष्यकाल, इन मराठी भविष्यकाल। द टाइम दैट इज एट टू कम इज द फ्यूचर।
What is definition of the future tense? The time that is yet to come is the future. Student, understand this? Next, we look here. The past include many events that have already taken place. For example, if you are 10-year-old today, it means that the event of your birth happened 10 years ago in the past. Similarly, after 10 years from now, that is, in future you will be 20 years old. The time gone by between today and the day of your birth is your past. The past in the life of a person. Student, for example, we take up your world, of your age. Okay, before 10 years ago you are the very small. For example, student, you are now 10 year, you learn in 5th standard, or and you are now 10 year. Whenever you born before the 10 year, okay, you born, you was very teeny, then you growth one by one step, and after the 3 year you go to in nursery classes, then after 1 year you go into KG1 standard class, then you after 1 you promote in KG2, then you promote in after 1 year in first standard, then when you can promoted in second standard, then you promoted in third standard, and then you promoted in fourth standard. Now in this year you promoted in this year you promoted in 5th standard. Means student, whenever that types event created in past, you are born to 5th standard event, it is going to the in past tense. It is going to the in past tense, means it is happen in the your past. आप जब नर्सरी से लेकर जब से बच्चे थे, आप जब पैदा हुए थे 10 साल पहले, और 10 साल के बाद में आपके लाइफ में जितनी भी घटनाएं घड़ी, मतलब आप नर्सरी में गए, KG1 में गए, KG2 में गए, फर्स्ट में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए, तो ये जितना भी 10 साल का जो समय है बच्चों, वो जो समय है वो आपका पास्ट है, और वहाँ जो घटने वाली जो घटनाएं हैं वो आपका हिस्ट्री है। उसी तरह बच्चों, अभी आप 10 साल के हो गए हो, 11th की रनिंग चल रही है, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट है, आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप अभी जिस करंट में आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट है। आफ्टर दी 10 ईयर, वेन एवर your age will be 20 years, जब आपकी उम्र जब आने वाले 10 साल में कितनी हो जाएंगी, 20 साल हो जाएंगी, और आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे। बड़े बड़े सपने देखते हो, जब मैं बड़ा हूँगा तो वकील बनूंगा, मैं बड़ा हूँगा तो टीचर बनूंगा, मैं बड़ा हूँगा तो डॉक्टर बनूंगा। इस तरह से वो बच्चों आपका फ्यूचर है, वो आपका क्या है, फ्यूचर है। द टाइम गोन बाय बिटवीन टूडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट, द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो बच्चों, जो समय आज से आपके जन्म से लेकर आज तक का जो समय है आपके जीवन का, वो आपका जो समय है बच्चों, वो भूतकाल में इंक्लूड होता है। कहाँ इंक्लूड होता है, भूतकाल में होता है, और जो अभी का समय है प्रेजेंट में होता है, और जो आने वाला समय है वो फ्यूचर में होता है। बच्चों, लुक इन दिस पिक्चर नाउ गिवन वन बेबी हियर, सपोज यू कैन यूज सपोज नाउ पास्ट, भूतकाल क्या है, भूतकाल है। 10 साल के पहले आपका जन्म हुआ था बच्चों, आप छोटे से थे, अभी आप स्कूल में आ रहे हो, कक्षा 5th में पढ़ रहे हो। टुडे वी आर 10 year olds नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द 10 year you shall be 20 years old, you shall be 20 year olds, and you make adult, you growth in
एडल्ट, आप तरुण हो जाओगे, जवान हो जाओगे बच्चों। तो बच्चों, the science that tries to understand past event is called history. Next definition given here student, जो शास्त्र है, ऐसा शास्त्र जो हमारे भूतकाल को समझने के लिए हेल्प करता है, भूतकाल की घटनाओं के समझने के लिए हेल्प करता है, और जो भूतकाल की घटनाएं जहाँ लिखी होती है ऐसे शास्त्र को हिस्ट्री कहते हैं। The science that tries to understand past event is called the history. भूतकाल में घटने वाली घटनाओं को समझने का शास्त्र या लिखा हुआ शास्त्र या वो इवेंट को बताने का शास्त्र मतलब होता है बच्चों हिस्ट्री। Now we ask some question. I ask some question student. What is the definition of the history? What is the definition of the history? What is the definition of the past tense? What is the definition of the present tense? What is the definition of the future tense? That type student question make in this topic. Student, now we stop here. You can write down in your workbook these questions answer given in this stanza, in this topic, in this paragraphs. And so student, you can write down in your workbook and find out the many difficult words from this topic and a teaching topic, and you can write down in your copy and then send in WhatsApp group. Okay student, okay, bye bye student.